Hello friends, welcome back to my channel Passionate Seva. In this video, we will discuss some important 30 questions which are related to our CTET Paper 1 competitive exam. इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. Hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel and also subscribe my channel for latest update. So move to our first question is question number 1. Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? Heredity और environment के role से related कौन से statements इसमें से सही है? Option number 1. Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment. Option 2. A child abilities to learn and perform is completely decided by the genes. Option number 3. Good care and a nutritious diet can off any disorder a child is born with. Option number 4. Environment plays a significant role only in the child language development. So option number A is the right answer of this question because heredity और environment दोनों ही एक अच्छा रोल प्ले करते हैं child की development में. Now move to our next question is question number 2. Which one of the following statements cannot be attributed to Piaget theory? इसमें से कौन सी statement सही नहीं है Piaget की theory के accordingly? Option number 1. Development occurs in qualitative stages. Option number 2. Children construct and use knowledge about their world. Option number 3. Learning take place through constant practice. Option number 4. Children act on their environment. So option number 3 is the right answer of this question because Piaget does not talk about the root memorization. ठीक है, Piaget हमेशा कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, नॉट टॉक अबाउट द रूट मेमोराइजेशन. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट? इसमें से कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशनल स्टेज की? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात किस थ्योरी में की गई है? Piaget की थ्योरी में. Option number 1. Tendency to concentrate. Option number 2. Development of the symbolic thought. Option number 3. Egocentrism. या option number 4. Irreversibility. So move to our third question is question number 3. Development of the symbolic thought is not a limitation of the pre-operational stage. So move to our next question is question number 4. Play has a significant role in development of young children for the following reason except. Option number 1. They gain mastery over their body. Option number 2. It stimulates their senses. Option number 3. It is just a pleasing way to spend time. Option number 4. They acquire new skills and learn when they use them. So option number 3. It is just a pleasing way is the right answer of this question because इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्ले है वो एक सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले करता है चाइल्ड की लाइफ में. इसमें से जो सबसे गलत ऑप्शन है वो है कि प्लीजेंट वे के लिए स्पेंड नहीं करते टाइम. बच्चा जो है प्ले इसलिए करता है ताकि वो एक नई स्किल्स को यूज कर सके या उसको लर्न कर सके. ठीक है, सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली? इसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा क्रिटिकली थिंक करता है? सो ऑप्शन नंबर 1. डू यू नो द आंसर टू दिस? ऑप्शन नंबर 2. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3. कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉलर सिचुएशन? ऑप्शन नंबर 4. व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व वे? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर सकता है जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन? इसमें से कौन सा एक अच्छा ऑप्शन है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है? ऑप्शन नंबर ए. लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग. ऑप्शन नंबर 2. थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट, टेक्स्ट रैंकिंग. ऑप्शन नंबर 3. पर्सनलाइज्ड learning, ability grouping, labeling students. या option number 4. project method, ability grouping and ranking. So option number 1 is the right answer of this question because progressive education हमेशा बच्चे की कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है कि बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेसिव मेथड का यूज करके उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग हो. So move to our next question is question number 7. Which one of the following statement about progressive education explain education is life itself? School, option number 1. School education should continue as long as possible. Option number 2. Schools are not required. Children can learn from their life experiences. Option number 3. Education in school should reflect the social and natural world. या option number 4. Life is the true educator. So option number 3 is the right answer of this question because education क्या है? Education basically जो हमारी social और हमारी natural life को reflect करती है because education is a social manner. So option number 4 is the right answer of this question. So move to our next question is question number 8. Which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg theory? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोहलबर्ग की थ्योरी का इसमें से क्या कंट्रीब्यूशन है? ऑप्शन नंबर 1. His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. Option number 2. The theory has elaborate testing procedures. Option number 3. Is established a clear relationship between moral reasoning and action. Option number 4. His belief is that children are more philosophers. So option number 1. His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity is the right answer because कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में moral reasoning की बात करी है, moral dilemmas की बात करी है. ठीक है, so move to our next question is question number 9. The zone of proximal development refers to option number 1. The phase when maximum development is possible. Option number 2. The development phase when child takes complete responsibility for learning. Option number 3. A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support. या option number 4. The point in learning when support can be withdrawn. So क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3. अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन राइट लेवल ऑफ सपोर्ट. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोस्की ने करी थी जहां उन्होंने बताया था अगर आप बच्चे को मिनिमम सपोर्ट कर सकते हैं तो आप बच्चे को एज अ गाइडर की काम करते हैं जब आप उसको सपोर्ट करते हैं और उस एरिया को वाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एरिया बताया है. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. एन एंड्रोजाइनस पर्सनालिटी. ऑप्शन नंबर 1. refers to men with feminine traits. Option number 2. has a balance of what generally considered masculine and feminine traits. Option number 3. tends to be assertive and arrogant. Option number 4. adheres to stereotypical gender roles prevalent in the society. So option number 2 is the right answer of this question because androgynous personality refer करती है masculine and feminine की traits से related. Goals throw of their following except. Option number 1. media. Option number 2. socialization. Option number 3. culture. Option number 4. tutoring. So
ट्यूटरिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज जेंडर रोल्स में हम ट्यूटरिंग की बात नहीं करते, हम बच्चे को बचपन से ही जेंडर रोल्स के बारे में नहीं पढ़ाते, तो ट्यूटरिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में क्या क्रिटिक कहा गया है. ऑप्शन नंबर 1, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बाइस्ड. ऑप्शन नंबर 2, देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ऑप्शन नंबर 3, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन. ऑप्शन नंबर 4, दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चाइल्ड एबिलिटी. सो जो क्रिटिक है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि बेसिकली ये लार्जली बेस्ड होते हैं मेन स्ट्रीम कल्चर पर और ये बाइस्ड होते हैं. जबकि एनसीईआरटी ने हमेशा कहा है कि हम बच्चे की डेवलपमेंट के प्रति हमें बाइस नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता चाइल्ड की लर्निंग के फेस में. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट. आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी. सो ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंस कैन बी रेपिडली एसिलेटेड. ऑप्शन नंबर 2, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स. ऑप्शन नंबर 3, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल. ऑप्शन नंबर 4, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी. सो ऑप्शन नंबर 4, इंटेलिजेंस विद मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी is the right answer of this question because Howard Gardner talked about the 8 types of multiple intelligence in his theory. Move to our next question is question number 14. Teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning too. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है. असेसमेंट फॉर लर्निंग है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपकी टीचिंग के दौरान होता है असेसमेंट, उसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं. और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट को, जो आपके एकेडमिक ईयर के एंड में होता है SA1 एंड SA2. सो ऑप्शन नंबर 1, नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल. ऑप्शन नंबर 2, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. ऑप्शन नंबर 3, असेस चिल्ड्रन परफॉर्मेंस एट पीरियडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस. या ऑप्शन नंबर 4, मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स. So option number 1, no children progress and achievement level is the right answer of this question. So move to our next question is question number 15, which one of the following is not related to the continuous and comprehensive evaluations. इसमें से कौन सा CCE से related नहीं है. CCE क्या है? Continuous and comprehensive evaluation का मतलब है कि पूरे साल हम बच्चे को किस तरीके से evaluate करते हैं portfolios के through. ठीक है. So option number 1 is it has been mandated by the Right to Education Act of India. Option number 2, it is an integral part of teaching learning process. Option number 3, it focuses on children achievement in different learning areas. या option number 4, it is useful to label children as poor, slow or intelligent. So option number 2 is the right answer of this question because ये teaching learning process का एक इंटीग्रल पार्ट है. लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो सीसीई से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका क्वेश्चन गलत होने से बच जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर नहीं है. क्योंकि कई बार क्या होते हैं, बच्चे नॉट वाले क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं करते और गलत आंसर लगा कर आ जाते हैं. तो इसका सही जो आंसर है अगर नॉट है कि हम बच्चों को एज अ पुअर, स्लो और इंटेलिजेंट की तरह क्या नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू. जो गिफ्टेडनेस है कि बच्चा जो है, कुछ बच्चे होते हैं सुपर इंटेलिजेंट होते हैं जिनका IQ लेवल क्या होता है 120 प्लस होता है, तो वो क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं. तो गिफ्टेड चाइल्ड से रिलेटेड एट्रीब्यूट क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. ऑप्शन नंबर 2, अ रिसोर्स रिच एनवायरमेंट. ऑप्शन नंबर 3, सक्सेसफुल पेरेंट्स. ऑप्शन नंबर 4, अ डिसिप्लिन रूटीन. सो ऑप्शन नंबर A, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरमेंट व्हिच. जो बच्चे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए आपको कैसी क्लासरूम का अरेंजमेंट करना चाहिए? सो ऑप्शन नंबर 1, teaches them good behavior. Option number 2, values and uses their culture and linguistic knowledge. Option number 3, discourages the use of their language so that they learn the mainstream language. Option number 4, categorize children based on their abilities. So option number 2 is the right answer of this question कि जो बच्चा है वो अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से आया है, उसकी लिंग्विस्टिक नॉलेज अलग है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली क्लासरूम एक्टिविटीज कंडक्ट करा सकते हैं. बिकॉज एनसीईआरटी ने हमेशा कहा है कि प्राइमरी लेवल पर मदर टंग की जो लैंग्वेज है उस पर फोकस किया जाए और उसके थ्रू ही पढ़ाया जाए बच्चे को. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन. ऑप्शन नंबर 1, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचर. ऑप्शन नंबर 2, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम. ऑप्शन नंबर 3, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम. ऑप्शन नंबर 4, गिविंग देम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को टैलेंटेड और क्रिएटिव चिल्ड्रन को आप उसको इंस्ट्रक्शनल मेथड के थ्रू या कस्टमाइज्ड मेथड के थ्रू आप उसको टीच कर सकते हैं, उसको कोई अलग एक्टिविटीज भी दे सकते हैं क्लासरूम में. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न. कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास में उछलते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं. तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सो ऑप्शन नंबर 1, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल सेगमेंट्स. ऑप्शन नंबर 2, ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग. ऑप्शन नंबर 3, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल. ऑप्शन नंबर 4, रिप्राइंडिंग देम ऑफ्टन फॉर बीइंग रेस्टलेस. सो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer of this question. So move to our next question is question number 17. Patterns of divergent thinking identify children who are. जो बच्चा क्रिएटिव होता है उसके अंदर क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है. डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या है, जहां बच्चा 10 दिशाओं में एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्रिएटिव चिल्ड्रन के पास होती है. सो ऑप्शन नंबर 3 is the right answer of this question. Question number 21. Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें से कौन सा एक वेज नहीं है जहां टीचर मॉडल कर सकती है चिल्ड्रन को प्रॉब्लम सॉल्वर के थ्रू. सो ऑप्शन नंबर 1, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर 2, बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग समथिंग. ऑप्शन नंबर 3, यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रेल एंड डिफरेंट आंसर्स. या ऑप्शन नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट थिंकिंग. सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4. हम बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं कि बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जहां बच्चा 10 दिशाओं में सोचे, लेकिन हम कभी भी बच्चे से कन्वर्जेंट आंसर्स की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि कन्वर्जेंट आंसर्स क्या होते हैं, जो वन वर्ड होते हैं और एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जिससे बच्चे से उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं होती, ना वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन. इसमें से एक इमोशन क्या है, मेमोरी, फियर, अटेंशन या स्टिमुलस. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, फियर इज द राइट आंसर. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23.
A 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. 3 साल का एक बच्चा ये कहता है कि जो मिल्क है, जो दूध है, वो किससे आता है? मशीन से आता है। तो ये जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो ऑफर करती है, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 2, द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। ऑप्शन नंबर 3, द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस। या ऑप्शन नंबर 4, द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे का क्या एक्सपीरियंस है कि बच्चे ने ये देखा कि जब वो मिल्क बूथ की साइड जाता है तो मिल्क बूथ से जब लोग मशीन के बटन पे प्रेस करते हैं तो वहां से मिल्क आता है। तो बच्चे ने जितना एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंगली बच्चे ने सोचा कि जो मिल्क है ये कहां से आता है? मिल्क बूथ से आता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल। इस स्टेटमेंट में से कौन सा अच्छी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है टीचर का रोल? ऑप्शन नंबर 1, टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर 2, अ टीचर शुड एडhere टू द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। ऑप्शन नंबर 3, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। या ऑप्शन नंबर 4, क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर द चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। तो एक बेस्ट इसकी स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि बेसिकली जो टीचर है वो वन वे कम्युनिकेशन ना करे, टू वे कम्युनिकेशन करे, जहां स्टूडेंट भी अपने थॉट्स को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके टीचर के सामने। सो क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेजेस रिच लर्निंग। इसमें से कौन सी जो क्लासरूम है वो एनकरेज करती है रिच लर्निंग को? ऑप्शन नंबर 1, अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द reach of children so that the material lasts longer. Option number 2, a classroom with open activity corners and a variety of children literature in open shelves accessible any time of the day. Option number 3, a classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. Yeah, option number 4, a classroom with structure and planned learning driven by textbook content. So the right answer of this question is option number 2. एक क्लासरूम ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चे को क्या हो? कॉर्नर्स के थ्रू ही बच्चा लर्न कर सके। आपने देखा होगा जितने भी स्कूल्स होते हैं उनकी वॉल्स पे क्या लगा दिए जाते हैं? स्लोगन्स लगा दिए जाते हैं जहां से बच्चा अट्रैक्ट होकर उस चीज को लर्न करे और बच्चे को एक ओपन स्पेस मिले। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following best describe the role of textbook in the classroom। इस स्टेटमेंट में से टेक्स्ट बुक की जो स्टेटमेंट है वो कौन सी अच्छी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है हमारी क्लासरूम में? सो ऑप्शन नंबर 1, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट और द नेशन। ऑप्शन नंबर 2, दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। ऑप्शन नंबर 4, दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन आवर रिसोर्स स्टाफ कॉन्टेक्स्ट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 कि टेक्स्ट बुक क्या है? एक रिसोर्स मटेरियल है जो हम यूज करते हैं क्लासरूम में। So move to our next question is question number 27. The National Curriculum Framework 2005 derive its understanding from। National Curriculum Framework 2005 हमेशा कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज को, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से किसी चीज को लर्न करे। So the right answer of this question is option number 3, कंस्ट्रक्टिविज्म। So move to our next question is question number 28. The children in a class can be considered to be motivated if। एक बच्चा है जो क्लास में मोटिवेटेड है तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, they come to school neatly dressed in uniform। ऑप्शन नंबर 2, they maintain discipline in the class। ऑप्शन नंबर 3, all are regular in attendance। ऑप्शन नंबर 4, they ask questions seeking clarification from the teachers। So right answer of this question is option number 4 कि बच्चा जो है टीचर से क्या करेगा? अपने क्वेश्चंस पुट अप करेगा कि ऐसी चीज क्यों है, उसको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा मोटिवेटेड है लर्निंग के लिए। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इंप्रूव चिल्ड्रन लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1, रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। ऑप्शन नंबर 2, टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। ऑप्शन नंबर 3, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। ऑप्शन नंबर 4, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि टीचर्स क्या कर सकती हैं? टीचर कंटेंट को एग्जांपल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगी ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी माइंड में या उसकी मेमोरी में वो चीज मेकअप हो। So our last question of the CTET paper 1 exam is question number 30. The discipline which has a significant role in a learning environment is of the kind which helps. Option number 1, children to regulate and monitor their own learning. Option number 2, to create silence. Option number 3, teachers to give instructions. Option number 4, children to memorize their lessons. So ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि बच्चा जो है अपनी लर्निंग को खुद रेगुलेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है अगर उसको एक रिच एनवायरनमेंट मिले। तो इस वीडियो में मैंने आपको सीटेट पेपर 1 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 1 के पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।